Radhe Radhe, very warm greetings to all of you. So let us start doing this question. Our first question, we have to solve it. So by exact, let us try to solve it by exact method. So this is our m and this is our n. So we have to find dm upon dy. It will be 2x log of y plus 2 of x. ठीक है, y इंटू 1/y तो ये कट जाएगा. ठीक है, तो ये 2x आ गया. नॉन फाइंडिंग dn अपॉन dx, it will be 2x. That's it. But here dm upon dy is not equals to dn upon dx. So we have to find the integrating factor first here. ठीक है, लेट अस सी. हमें दिख रहा है कि अगर हम dm dy माइनस dn अपॉन dx करते हैं, सो वी विल गेट 2x log ऑफ y एंड इसको हम डिवाइड कर देते हैं m से. सो वी विल गेट 1 अपॉन y. दिस 1 अपॉन y. ठीक है, नाउ अब हमें कुछ दिख रहा है कि यस वी आर फाइंडिंग समथिंग. नाउ 1 अपॉन y multiply here 1 upon y multiply 1 upon y. Now your m is 2x log of y and your n is x square upon y plus y square plus 1. Okay, now again find dm upon dy. So it will be 2x upon y and here dn upon dx. So it is 2x upon y. Yes, now it is same. तो ये exact हो गया. Yes, now it's exact. Now अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, सॉल्व करना है. ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं. y here constant m of d of x plus n d of y here x free from x 0. ठीक है, तो जब हम इसको m को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, सो इट विल बी 2x square upon 2 because your y is constant, so log y. Now this should be free from x, so this term gets out is, ठीक है, d of y. इतना टफ क्वेश्चन दिख रहा था बट इट इज़ नॉट दैट मच टफ indeed. Now it will be x square log of y into y square plus 1 d of y. Now put to solve this, y square plus 1 equals to t, so it will be 2y d of y is dt. ठीक है, let us solve this only. So this will be under root t and dt upon 2, 1 upon this t plus 1 and denominator 3 upon 2. So here comes our answer. So it was our m is 2x square, no? So it is x square log of y and plus it is 1/3 and t is your y square plus 1 3/2 equals to c. This is our answer, है ना. And this we have to find by using exact differential equation.
Okay, now next. Now this question I have tried to solve it by homogeneous method. ठीक है, तो ये हमारा होता है we have to put y equals to v of x. Now our equation is 2x square v e raised to power 1 upon v का whole square. Now it is y square 1 plus e raised to power 1 upon v का whole square plus 2. ठीक है, this will be कुछ और here we have to write v square x square. Now taking v x square common, so we will be left with 2 v e raised to power 1 upon v का whole square. ये आ जाएगा v square 1 plus 1 upon v का whole square plus 2 v raised to power 1 upon v का. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. नाउ y इक्वल्स टू v ऑफ x है. y को हमने v ऑफ x लिया है. इफ आई डिफ्रेंशिएट इट तो इट विल बी dy अपॉन dx. ये हमारा क्या हो जाएगा v प्लस x इंटू dv अपॉन dx. ठीक है, तो ये अगर मैं इस तरफ लिखती हूँ दिस और लेफ्ट हैंड साइड में मैं दिस. ठीक है, आ जाएगा v प्लस वाई डैश इंटू वी. ओके, इक्वल्स टू दिस. ओके, नाउ v वाली टर्म्स एक साइड ले आते हैं. नहीं, उससे पहले हम y डैश डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वी. यह आ जाएगा 2v ई रेज टू पावर 1 अपॉन v का होल स्क्वायर v का स्क्वायर 1 प्लस ई v का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस जो v था ना ये वाला, दिस रीचेज आउट हेयर. ठीक है, ये यहाँ पे पहुँच गया. तो अब ये यहाँ पहुँच गया. अब मुझे लेना है इसका एलसीएम. तो ऑन टेकिंग एलसीएम दिस विल बी v क्यूब 1 प्लस ई 1 अपॉन v का होल स्क्वायर एंड माइनस 2v ई रेज टू पावर 1 अपॉन v का होल स्क्वायर. ठीक है, तो दिस एंड दिस कट इट आउट. ये एलसीएम हो गया. ठीक है, ये हमारा कट गया. ओके, नाउ अब हम v वाली टर्म और x वाली टर्म एक साथ लिख देते हैं. ओके, तो हमारा ये आ जाएगा मैंने कुछ गलत कर दिया. वी एक्स ये तो v डी अपॉन डी एक्स था ना, यहाँ पे v आ जाएगा. ठीक है, ये x में, तो ये डी एक्स अपॉन दिस एंड हमारे पास आ जाएगा ये वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी ये, एंड नीचे आ जाएगा माइनस वी क्यूब 1 प्लस ई 1 अपॉन वी का होल स्क्वायर. ठीक है, you have to use pen and pencil, without that you won't be able to understand. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई. एंड हियर इट इज d ऑफ v. एग्री. नाउ अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको सेग्रीगेट कर लेती हूँ ना एलसीएम वाइज. तो ये हो जाएगा dx अपॉन x इक्वल्स टू v स्क्वायर. ये इस चीज़ को इस एंटायर को इसके नीचे एंड इसके नीचे. ठीक है, तो आई एम डूइंग दैट ऑल कैलकुलेशंस कटिंग आउट. तो ये आ जाएगा
-1/v एंड सेकेंड आ जाएगा -2/v का क्यूब, ऊपर आपका e - v का होल स्क्वायर एंड नीचे है 1 + 1/v का होल स्क्वायर। ठीक है, ये dv। तो ये हमारा दिस इज़ हमारा log ऑफ x आ जाएगा, ये माइनस log ऑफ v आ जाएगा। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वन व्हाट वी हैव टू डू, हम एक चीज़ कर सकते हैं, पुट 1 + e1/v का होल स्क्वायर इक्वल्स टू t, और डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा मेरा e1/v का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको हम करेंगे तो ये आएगा हमारा -2/v³, एग्जैक्टली द टर्म विच वी नीड। ठीक है, ये dv इक्वल्स टू dt, तो ये हमारा आ जाएगा प्लस यहाँ पे dt हो गया और इसकी जगह हमारा t आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस log ऑफ v प्लस log ऑफ t, log ऑफ t/v log ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू t/v। ठीक है, नाउ अब हम वैल्यूज़ रिटर्न कर लेते हैं। हमने 1 + e1/v को हमने t लिया था, और v हमारा y इक्वल्स टू vx था, तो y/x हो गया, x कट जाएंगे, तो y इक्वल्स टू 1 + e(x/y) का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज़ आवर सॉल्यूशन। वेरी इजी वन, इजी था बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, नो डाउट मिस्टेक्स होने के देयर आर चांसेस। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। हाँ, इसको हम कैसे करना है, इसको हम लेट 4x + y + 1 इक्वल्स टू v। ठीक है, नाउ ऑन डिफ्रेंशिएशन इट विल बी 4 + dy/dx dv/dx। ठीक है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, dv/dx -4 हो जाएगा, है ना। और इस dy/dx की जगह हम ये लिख सकते हैं, और ये क्या है v², तो इसको मैंने v² लिख दिया। ठीक है, नाउ आई हैव दिस एज अ इक्वेशन, तो ये आ जाएगा मेरा dv/dx 4 + v²। नाउ वेरिएबल सेपरेबल मेथड d of x on integration, this will be, let me rub, so on integration this will be 1/a tan inverse x/a। ठीक है, एंड इधर आ जाएगा x + c। नाउ इट विल बी v/2 tan of 2x + c आ जाएगा। नाउ v को हम यहाँ पे 2 आ जाएगा। नाउ v इज और 4x + y + 1, दिस इज b 2 tan 2x + c। now using this condition x is 0, so then it is 0 + 1 + 1 is 2 tan of c, so it is 1 equals to
10 of c. c is my pi by 4. To use in place of c pi by 4, and this is my आंसर सोल्यूशन. सो आई होप यू लाइक इट. आज वाले काफ़ी इजी थे, ज़्यादा उसमें ट्रिकी नहीं था. तो थैंक यू सो मच.